Good morning, all honorable members. I welcome you all to the second sitting of the second session of 8th Legislative Assembly. Before going to today's agenda, I would like to inform the House that a pack of gift items from Honorable Minister of Tourism, Sri P.D. Sonaji, has been placed in respective table for the House. I think you all have received. Now, we will take up item number 1, that is question hour. Now, we will take up the start question one by one. Start question 25, Dr. Mohesh Chai. Thank you, Speaker, sir. I had asked that start question regarding the engineering college which has been constructed at Teju under Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan. I'm not very satisfied with the reply, so I have some supplementary questions that I would like to ask the Honorable Education Minister. So this Rashtriya Uchchatar, this Government Engineering College at Teju, which was sanctioned under Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, was sanctioned in the year 2019, and the foundation laying was done by none other than our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and it was done virtually in the month of February 2019. The people of our state and the people of my constituency are having a lot of expectations from this college, not only in terms of academic activity, but also in terms of some small employment generation and the economic activities which are related to this college. So my first question was, when will the Government Engineering College Teju start functioning, or when will the commencement of the courses take place in the engineering college? The answer has been given that some post-creation has been done, and some other post-creation for that file submission has been done to the Finance Department for approval. So my specific question, the reply is not very specific, that is what I'm seeing here. So my specific question to our Honorable Education Minister is, can or has any timeline been set for commencement of course in the Government Engineering College Teju? That is the first supplementary question. And the second supplementary question is regarding the construction of residential quarters, boundary wall, etc., and the internal roads. It is written that the state government is also funding for some more construction. This constructions, like internal roads, residential quarters, are equally important like the academic building or the administrative building or the boys and girls hostel which have been already constructed. So my second supplementary question is whether fund has been already sanctioned for construction of the other infrastructures like the internal roads, the boundary wall, residential quarters, etc. And if not so, then is it likely to be sanctioned? Thank you. Honorable Minister. स्पीकर सर, जो हमारा ऑनरेबल मेंबर का जो क्वेश्चन था, द टाइमलाइन, तो रिगार्डिंग द टाइमलाइन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तो ऑलरेडी द आंसर हैज़ बीन लेड ऑन द टेबल. जैसे हमारा पोस्ट क्रिएशन का, जैसे 60 पोस्ट का क्रिएशन के लिए हमने दिया है, एंड आउट ऑफ 60, 40 हैज़ बीन क्लियर बाय द एआर डिपार्टमेंट एंड द रेस्ट आर द प्रोसेस. So until and unless the post creation is done, we cannot give any timeline. So it will all depend on how fast we expedite the post creation when the government gives the approval. And secondly, regarding the infrastructure, he has asked a supplementary question. So from the government side, under state plan, the type 4 quarter 8 numbers had been under process. Then type 2 quarter 8 numbers, principal quarter 1 number, and boundary wall and internal road all under proposal. So once the infrastructure is in place and the requisite manpower is done, I think we'll be able to start the engineering college. Thank you, sir. Next,
start question number 3, Sri Laisam Simai. Mr. Speaker, sir, my question was regarding the inordinate delay of Power Grid project in entire TCL region, particularly in Changlang district. For your kind information, the Power Grid project was sanctioned in 2015, and it's been almost 9 years. The work is still under progress, as a result of which the citizens of the region are facing power problem. Our people are in the hope that soon we'll be connected with grid line and enjoy the power connection 24/7 as per the rest of the country. I'm thankful to the Honorable Minister, who is also Honorable Deputy Chief Minister, for the reply. I am satisfied with the reply. However, I have one supplementary question, sir. What steps are being initiated to speed up the work of Power Grid in the TCL region? Sir. Meghalaya, Mizoram, Tripura, and Naga for the transmission line, improvement of transmission line and distribution system. And for Arunachal Pradesh and Sikkim, the name of the project is Comprehensive Scheme for Strengthening of Transmission and Distribution System in Arunachal Pradesh and Sikkim, which is popularly known as the Comprehensive Scheme for the state of Arunachal Pradesh and Sikkim. We have, honorable member have rightly said that originally the government of India has sanctioned the projects on 10th of October 2014. And timeline for completion was within December 2018, with estimated cost of 3,199.45 crores in respect of Arunachal Pradesh. Accordingly, memorandum of understanding was signed between Arunachal Pradesh and Government of India on 19 February 2015. The scope for the scheme are like this: 132 kV transmission line, 33 numbers with total length of 1,017 kilometers. The total length is 1,917 kilometers for 132 kV transmission line. It is 33 numbers of transmission line, transmission line. And 33 kV, 70 numbers with aggregate length of 1,923 kilometers. In addition to that, substations 132 by 33 kV, 24 numbers with an aggregate of capacity of 529 MVA. And also 33 by 11 kV, 70 numbers with aggregate capacity of 465 MVA. Subsequently, in addition, 3 more 132.33 by 33 kV substation associated with 3 numbers of 132 kV transmission lines in western sector of Arunachal Pradesh. The project was accorded the revised sanction, the revised cost estimate of rupees 6,519.37 crores on 26 March 21. Under this revised course, which are to be completed by March 2024, is the target given by Government of India.
However, due to various reasons and circumstances, the project could not be completed as per scheduled timeline. Following being some of the primary reason for impediments. So why we could not complete the timeline? The reasons are like this. Transmission line passing through forest areas. Out of the total geographical areas of 83,742 square kilometer, Arunachal Pradesh, most of the areas are hilly terrains covered with about 61.4% forest and jungles of various categories and classes, such as reserve forest, proposed reserve forest, that is RF, proposed reserve forest, that is PRF, other protected and unclassed state forest, that is USF, and village reserve forest, etc. For laying the transmission line through these forest areas, forest clearance and working permission have to be obtained as per prescribed rules and procedure, which are tedious and time-taking. Despite the best efforts, there have been delays in the accord of clearance and permission, which have delayed the start of the construction work. Also, right-of-way ROW issues. At many places, even after finalization of the route, individuals and communities have raised resistance in construction erection of the transmission towers, thereby requiring even rerouting of such critical line, thereby delaying the progress of the construction. So even after the alignment, we have to take up a realignment because of the dispute between the villagers and all district. So that is also cause of delay. Dispute of ownership of land. समय ऐसा होता है कि अपना अपना फैमिली में झगड़ा हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है जमीन को लेके, उसमें भी टाइम चला जाता है बहुत. During compensation assessment and disbursement, cases of disputes of ownership and claimants have also obstructed and delayed the start of the construction. But despite all odds, the state government has been able to resolve all such impediment to support the implementing agency, that is Power Grid, to go ahead with the implementation of the project work as convenient to as possible and complete the same at the earliest possible time benefit of the public of the state. Similarly, in absence of the provision of compensation to the dwellers of reserve forest areas, the state government eased the concerns of the local Arunachal Pradesh scheduled tribe dwellers for affording them with certain compensation through the special ex gratia relief package policy 2023 and notified the same on 31st August 2023, wherein the affected dwellers in the corridor of right-of-way, the reserve forest of the transmission line under the project shall be afforded with 42.5% of the land value for tower base area and 7.5% of the land value in the width of right-of-way corridor under. हमने रिजर्व फॉरेस्ट में भी इसका प्रोविजन रखा है, ऑल्दो रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं है, लेकिन हमने कैबिनेट डिसीजन स्पेशल एक्स ग्रेशिया रिसीव पैकेज पॉलिसी का अंदर में उनके लिए भी 42.5% और टावर बेस में और 7.5% लैंड वैल्यू पे हमने रखा है. एज ए रिजल्ट ऑफ अबव डेविएशन ड्यू टू टाइम ओवररन, द कंसिक्वेंट पोस्ट ओवररन प्रोसेस for accord of second revised sanction of the project is at advanced stage of the government approval. तो डिले के कारण से फिर रिवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्फ्रेंस किया है और हमें उम्मीद है कि जो रिवाइज एस्टिमेट होगा उनका 8,120 करोड़ तो सैंक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा. अकॉर्डिंगली ऑन ओवर डेट मिनिस्ट्री ऑफ पावर डेट 17 May 2024, Minister of Power, Government of India has conveyed approval of the execution of
project completion period till 31st March 2025. Government of India has conveyed us completion period should be extended to 31st March 2025. And we are hopeful that with all our best efforts and support to the implementing agency, the project would be completed soon for catering the benefit to the targeted beneficiary public as per the project objective. Now, why it is delayed in Changlang also? In the same line, in Changlang also, the ongoing project, 3 numbers of 132.33 kV new grid substation are being constructed at Miao, Jairampur, Changlang, and 5 numbers of 33 by 11 kV distribution management system. Substations are being installed at Dayun, Kharsang, Manmo, Khimiang, and Changlang, including 1 DMS augmentation at Miao. These DMS substation will be fed power from the existing power grid 132 by 33 kV substation at Namsai, as well as from the Deomali 220 by 132 by 33 kV grid substation of Arunachal Pradesh Power Department via the upcoming Deomali, Khunsa, Changlang 132 kV transmission line. All transmission lines being constructed projects are passing through unclassed state forests, reserve forests, or the revenue areas. Working permission for Jairampur, Changlang, and Khunsa, Changlang 132 transmission line for feeding power to Changlang 132 by 33 with substation were received only in September 2023 and May 2023 respectively. Works in transmission line associated with Changlang grid substation have commenced only after the disbursement of the compensation assessed in USF areas as per the prevailing policies. Construction work of 132 kV transmission lines are in progress. The case of the project is being reviewed regularly by Government of India as well Government of Arunachal at the highest level. All supports are which are as required for fast progress and completion of the projects are being extended by district and state authorities for implementing agency to the implementing agency to initial delay in forest clearance and other circumstances beyond control have somehow delayed early commencement of construction work in the implementing agency, that is Power Grid, is being supported to put up their best efforts to complete the transmission line associated with all the new grid substations in Changlang district in the extended timeline of March 2025. And we are hopeful for the achievement. Thank you, sir. A supplementary question. Now, next start question 34, Sri Panitaran. Thank you, Honorable. My question was regarding the medicine and medical equipment all the district hospitals of the state. I've seen the reply. Up to some extent, I have satisfied. लेकिन फिर भी इसमें एक बहुत बड़ा समस्या हमारा राज्य में जो चल रहा है, हॉस्पिटल्स में जब भी हमारे पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्रिप्शन तो कर देता है मेडिसिन एंड टेस्ट, तो मेडिसिन जब प्रिस्क्रिप्ट करता है तो हॉस्पिटल में मिलता नहीं, वो बाहर से खरीदना पड़ता है। यहाँ पे रिप्लाई में दिया गया है कि मेडिसिन जो है फ्रीली किया जाता है और इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स वो जो है बफर स्टॉक से लिया जाता है एंड एमडी एनएचएम से भी वहाँ अवेलेबल किया जाता है, ये रिप्लाई दिया गया है। लेकिन मेरा ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी होगा, अगर मेडिसिन सप्लाई किया जाता है तो फिर हमें हमारा पेशेंट को बाहर से जो फार्मेसी से क्यों खरीदना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में यहाँ पे दिया गया है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे अभी देता है, तो फिर
उसके बाद जितने भी जो लेबोरेटरी टेस्टिंग किट्स है तो उसके बारे में भी मैंने पूछा, वहाँ भी सप्लाई किया गया है, ये बताया गया है। लेकिन जो MRI है, CT स्कैन से, तो मेजर जितना भी जो बीमार है उसका जो टेस्ट के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे केवल कैपिटल में दिया गया है और एक डिस्ट्रिक्ट तिरप में दिया गया है जो CT स्कैन का, तो MRI जो ट्रिम्स में है ये दिखाया गया है। तो मेरा ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा कि जितना भी जो शॉर्टेज मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है उसको जो गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कब तक प्रबंध किया जाएगा, अगर करेगा तो कब करेगा, और नहीं करेगा तो रीजन क्या है। तो ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू सर। मिनिस्टर। स्पीकर सर, मेडिसिन का कमी जो उन्होंने बोला है ये किसी किसी जगह में हो सकता होगा, लेकिन हर एक जगह में नहीं है, क्योंकि मेडिसिन जिस तरह से हम लोगों ने रिप्लाई में दिया है, मेडिसिन अवेलेबल है। जहाँ जब शॉर्टेज पड़ता है तो हम लोग NRC या कैपिटल से, यहाँ से टीम से हो, कहीं से भी हो, हम लोग पहुँचा देते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी जगह में दूर दराज होने का वजह से पहुँचा नहीं पाता है, उसका हम लोग को खेद है। ये जल्दी ही अभी जिस तरह से रोड का टेराइन अगर ठीक ठाक हो जाता है और हम लोग जल्दी ही इसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे और दवाई जल्दी से पहुंचाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि फिर डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिसिन जरूरत होता है वो कभी कभी होता नहीं, क्योंकि मेडिसिन कभी कभी सेंट्रल प्रोसेस होता है, इसका वजह से भी कभी कभी जो मेडिसिन का जरूरत जिस जगह में होता है कभी कभी नहीं पहुँचता। इसीलिए मैं इसके लिए मैं खेद मानता हूँ मैं, और इसको जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग डिपार्टमेंट का तरफ से इसको फुलफिल करेंगे। दूसरा, उन्होंने CT स्कैन का बारे में बोला है। CT स्कैन MRI वगैरह जितना है हम लोग का 6 जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें सब में इंस्टॉल किया गया है, और हर एक जगह में अभी हम लोग जैसे कि तवांग हो, तेजू हो और नामसाई हो, पासीघाट हो, उसमें हम लोग आपका ये टेली कंसल्टेंट का थ्रू से हम लोग करता है। अभी जैसे उसने लास्ट टाइम में तवांग में विजिट किया था, तो वहाँ में क्या है कि CT स्कैन हो, एक्सरे हो, जो भी हो, अगर हमारा वहाँ एक्सपर्ट नहीं है तो वो कलकत्ता बेस से PP मोड में करके रखा है। तो वहीं से उन लोग जो जितना भी आपका बीमारियां है वो जो उसको उसके बाद बेचता है, तो फिर वहीं से हम लोग को रिपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रिम से डायरेक्ट हो। जितना जनरल हॉस्पिटल है वो जितना भी अपना ट्रिम से ही डायरेक्ट टेली कंसल्टेंट का जरिए वहाँ CT स्कैन हो, एक्सरे हो। लेकिन अगर वहाँ एक्सपर्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो हम यहाँ नाहर ट्रिम से ही हम लोग वहाँ से इसका रिपोर्ट कम से कम साथ ही साथ 1 घंटा 2 घंटा अंदर में उनका रिपोर्ट वहाँ में पहुँचाने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्द मेरा ख्याल से हम लोग इसको कामयाब होंगे। थैंक यू। Oh, any supplementary question? Sir, I have, sir. Okay. Sir, honorable member Pancharam का सर उसमें I would like to supplement सर मैं करना चाहूँगा कि डायलिसिस जो मशीन है सर हमारे जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बमडला में दिया गया है, बट देन वो बिकॉज ऑफ टेक्नीशियन उसको अभी तक इंस्टॉल भी नहीं हुआ। बट देन समहाउ आई मैनेज वन एट दिरांग, लेकिन उसका जो तनख्वाह जो है उसको तो मैंने खुद अरेंज करा दिया, जो अभी एंटायर डिस्ट्रिक्ट को सर्विस दे रहा है, तो डायलिसिस वेस्ट कामेंग दिरांग में दे रहा है। तो उसका टेक्नीशियन को सिंस लास्ट 2 years आई एम पेइंग फ्रॉम माई सैलरी। तो सर मैं सर ऑनरेबल मिनिस्टर सर आपका जरिए सर मैं सर आपसे सर एक आश्वासन चाहता हूँ कि सर हमारा टेक्नीशियन सर मेरा दिरांग को भी सर प्रोवाइड करे सर, और डिस्ट्रिक्ट का भी जो सर जो इतना बड़ा बड़ा अच्छा मशीन जो सर प्रोवाइड सब हम लोग प्रोक्योर करके रखा हुआ है उसको भी सर आप कब तक करेगा सर, एक एश्योरेंस सर आपसे लेना चाहूँगा सर। एश्योरेंस देना तो थोड़ा तकलीफ होगा, हम लोग इसका ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है कि मैंने भी दिरांग में जब मैं लास्ट टाइम तवांग गया था, दिरांग भी मैंने विजिट किया। वहाँ जैसे उन्होंने कहा है कि डायलिसिस सेंटर है वहाँ पे, लेकिन टेक्नीशियन को वो शायद वो खुद पे कर रहे हैं। तो मेरा ऑनरेबल जितना अपना यहाँ में हाउस में मेंबर है, मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ में दूर दराज में जो डॉक्टर्स अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, तो वहाँ में क्या कि डॉक्टर का कमी इसलिए होता है कि वहाँ क्वार्टर नहीं है डॉक्टर का रहने का। तो मेरा हाउस से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि टेक्नीशियन हो जिस तरह से पुष्पा जी पे कर रहे हैं, तो हम हमारे MLLH से हो या SIDF से हो,
हम पे कर सकते हैं। और एक क्वार्टर अभी अपना डॉक्टर्स का क्वार्टर है, नर्स का क्वार्टर है, हमें SIDF में काफ़ी पैसा मिलता है, तो उसी से ही कम से कम हम एक अगर ऑनरेबल MLA एक क्वार्टर बना दे 30-40 लाख का, तो मेरा ख्याल से ये हमारा हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए भी रहेगा, और ये मैं अपील करूँगा कि सभी लोग इसमें थोड़ा सा अगर मदद करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू Sir. Thank you, sir. Sir, through you, I'd like to know from the Honorable Minister. Sir, ऐसा समय है हम लोग का यहाँ में for the last many years, मेडिसिन जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स है, हम लोगों का जिंदगी को बचाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सुना गया है, और कहीं कहीं में डिस्ट्रिक्ट्स में, खास करके अपना चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हमने पिछला 2-3 महीना से डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स विजिट करता है, छानबीन करता है, तो सर उसमें जो मेडिसिन यहाँ से स्टेट से जो सप्लाई करता है वो नियरिंग एक्सपायरी, 1 महीना या 2 महीना वाला एक्सपायरी डेट का एकदम नियरिंग वाला को सप्लाई करता है, जिसके चलते सर वो स्टॉक में तो बहुत मेडिसिन दिखाई देता है, लेकिन डॉक्टर जब रिकमेंड करता है तो पूरा एक्सपायरी वाला होता है। इसलिए जब हॉस्पिटल से मेडिसिन को स्टॉक से आउट करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो पब्लिक ह्यू एंड क्राई होता है, अरे इतना मेडिसिन हो के भी आप लोग क्यों नहीं दे रहे? सर ऐसा गफला काफ़ी लाइफ लोगों का जिंदगी का खिलवाड़ में भी हो रहा है, तो सर ये बहुत सीरियस मैटर है। इसलिए मैं चाहे वो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट कीजिए या डिसेंट्रलाइज कीजिए, इस सरकार का ऊपर है, लेकिन मेडिसिन को सर एटलीस्ट जो लाइफ सेविंग ड्रग्स को हम लोग फुल अच्छा वाला खरीद के लोगों को पहुंचाने से अच्छा है। इसलिए सर ये मेरा सजेशन है, या ये इंफॉर्मेशन हाउस के लिए मैं दे रहा हूँ। स्पीकर सर, सिमाई साहब को थैंक यू, उन्होंने अच्छा बात बताया है, लेकिन मेरा रिप्लाई वही रहेगा कि सेंट्रलाइज होने का वजह से कभी कभी क्या स्टॉक ज़्यादा हो जाता है, और जो ज़रूरतमंद का दवाई जो कभी कभी वहाँ पहुँच नहीं पाता है, तो हम लोग उसका ऊपर काम कर रहे हैं, ज़रूर इसका भी हम लोग सुधार लाएंगे। आप विश्वास रखिए, अभी हम लोग इसका ऊपर सभी लोग मिलके, मैं अकेला नहीं, मुझे तो आपका भी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आपका जगह में क्या दवाई का कमियाँ है, आपका DMO को बताना पड़ेगा कि दवाई का क्या कमियाँ है, तो उसी हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे। थैंक यू सर। Thank you. Sir, can I just... No. Already over. 3 supplementary question is already done. So we'll move to next start question number 9. Sri Thangwang Wangham. Honorable Speaker, sir, through you, I would like to inform the Department of PWD that I am not satisfied with the answer they have placed. It seems to be a very misleading answer. PWD ने एक रास्ता बनाया था CRIF, जिसमें 24 करोड़ सैंक्शन हुआ, और प्रोजेक्ट एरिया है तीसा कैंप, सेनोआ कैंप से लेके PKV स्कूल तक। तो वेरी सरप्राइज कि VKV लोंगडिंग और सेनोआ कैंप के बीच में ओनली 2 किलोमीटर 2.6 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, एंड दैट बोथ द लोकेशन इज वेरी मच ऑन द हाईवे। हाईवे में दोनों लोकेशन है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक पैरेलल मैंने एक रास्ता बनाया, पैरेलल रास्ता बनाया है, वो भी रेनबो शेप में बनाया है, ऐसे झुला करके, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, कोई टारगेटेड डेस्टिनेशन भी नहीं है। अभी यह हमें आंसर दे रहा है कि वहाँ हमें WRC फिल है, एक आदमी का भी WRC फिल नहीं है। अगर WRC फिल होने से भी 2 आदमी का, 1 आदमी का परिवार का ही होगा, तो 24 करोड़ दे के उसके लिए क्यों रास्ता बनाना है? ये वेस्ट नहीं है कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ कॉमन फंड फॉर नो पर्पस, फॉर नो ऑब्जेक्टिविटी, फॉर नो यूटिलिटी। अभी हमको नाहरलगुन जाना है, ठीक है,
तो ये 15 किलोमीटर है, लेकिन हम होलोंगी जाएगा, गोपुर जाएगा, फिर वो नारायणपुर, डैन, बंडरवा होके ऐसे घूर के जाना, वो तो सीधा 18 किलोमीटर में जाइए, सीधा 15 किलोमीटर नाहरलगुन टू ईटानगर का डिस्टेंस, तो होलोंगी होके क्यों घूरना है? अगर जाना है तो WRC फील्ड को ठीक करना है तो WRC फील्ड तक छोड़ो, फिर वापस क्यों आया VKV रास्ता में, VKV स्कूल में? दोनों एक जगह में है, सेम जगह में। ये तो माने मीनिंग नहीं होने वाला ये बनाया है। और उसी समय के MLA ने फोन किया होगा डिपार्टमेंट को, हेलो ये रास्ता बना दो सेनवा कैंप से वो KVK तक बना दो। तो KVK हमारा वहाँ में KVK स्कूल है, KVK जो कृषि विज्ञान केंद्र, मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट किया था 2018 में। 2018 में मोदी जी ने उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेट किया था। वेरी पॉपुलर जगह, वहाँ तक मैंने एक साइड से रास्ता पहुँचा दिया। तो इस साइड से पहुँचाने के बाद था तो तब मैं इलेक्शन में हार गया। तो अभी वो रास्ता को ऐसे जलेबी बना रहा है, जलेबी बना के रास्ता को खा जा रहा है। दिस इज रॉन्ग और ये मिसलीडिंग आंसर है ये। तो ये चीज को बता दिया KVK पहुंचा दो, तो वो PWD वालों ने KVK क्या है मालूम नहीं, कभी सुना नहीं होगा KVK, तो इसलिए VKV बोल लिख दिया उसमें। KVK और VKV के साउंड तो एक जैसे सुनता है ना, तो KVK बोल दिया तो VKV लिख दिया, तो प्रोजेक्ट वहां में खराब हो गया। हमने ये प्रोजेक्ट कोई मीनिंग का नहीं था एक्चुअली। तो मैं ये सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि इसका कोई फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाया था क्या? रिपोर्ट लिया नहीं था कि इसका क्या यूटिलिटी होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, क्या पर्पस होगा बोल के इसका स्टडी नहीं किया था क्या? कोई किसी का MLA का और लीडर का टेलीफोन में सीधा रास्ता क्यों बना रहा है? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है KVK जो कृषि विज्ञान केंद्र नरेंद्र मोदी जी ने जिसको इनॉग्रेट किया था, ये VKV के सामने में है। अभी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कुछ ही होगा, तो इसको कनेक्ट करना चाहिए था, वो नहीं किया, रास्ता को जलेबी बना दिया। तो अभी वो KVK तक रास्ता पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट का कुछ, डिपार्टमेंट का कुछ प्लान है कि नहीं? ये मेरा 2 सवाल है। Next, honorable minister. ऑनरेबल स्पीकर सर, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नंबर 9 के जो सप्लीमेंट्री जो यहाँ पे रखा गया है श्री थनवांग जी ने, इन्होंने जो एज पर द फॉर्मेट क्वेश्चन A, B, C, D जो पूछा है उसका तो क्लियर कट डिपार्टमेंट को ओर से जवाब दिया गया है, वो भी सर्कुलेट भी किया गया है। हमें नहीं लगता है कि ये आंसर में कुछ मिसलीडिंग है। चलो इन्होंने अभी जो सप्लीमेंट्री के रूप में बताया तो बोला है कि एग्जैक्ट डिस्टेंस जो रोड जो बनाया है उतना ज़्यादा दूर नहीं है, शायद वो रोड जो है कहीं घूमने के बाद में थोड़ा सा डिस्टेंस करीबन लंबा हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन हुआ था 2022-23 में अंडर CRIF। कुल मिला के इसमें जो डिस्टेंस जो कवर्ड होना चाहिए वो है करीबन 8.8 किलोमीटर्स, और ये ऑल वेदर रोड होगा जिसमें GSB, WBM 2-3, इसके बाद ब्लैक टॉपिंग ऑफ द एंटायर रोड, इसके बाद कलवर्ट स्लैब 32 नंबर्स है, इसके बाद 2 नंबर ब्रिज भी है और CC ड्रेन भी है इसमें। कुल मिला के अभी तक जो डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट दिया है 40% फिजिकल अचीवमेंट इस रोड में हो गया है। मगर विधायक जी का जो कंसर्न है, उन्होंने कहा कि ये रोड का जो सप्लीमेंट्री 1 में जो फिजिबिलिटी और इसका जो वायबिलिटी का कंडक्ट स्टडी हुआ कि नहीं हुआ, ये किस कारण से डिपार्टमेंट ने इसको टेकअप किया है। तो डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट से और जो डिस्ट्रिक्ट से जो रिपोर्ट आया है, यहाँ पे उन लोग अपना यहाँ मेंशन किया है कि जो एरिया है सेनुआ विच इज़ लोकेटेड बिटवीन तीसा एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर,
At present, the population is centered around Tisa, Senwa camp and Senwa. The population of these villages is around approximately 3,000. तो ये रोड इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है अभी उतना ठीक नहीं है, तो रोड आने से उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपना खेती बाड़ी को एक्सपांड करने के लिए। तो रोड होने से हम सब लोग बिलीव करते हैं कि बाकी डेवलपमेंट अपना अपना फॉलो ऑन हो जाता है। तो जैसे रोड्स तो सिंगल एक रोड होने से भी हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल रोड अगर अप्रोच होता है तो उससे जगह के लिए बेनिफिट भी होता है। नो डाउट उसके लिए गवर्नमेंट का एक्सचेकर में थोड़ा झटका तो होगा, क्योंकि आप मल्टीपल रोड्स बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, मगर उस मल्टीपल रोड्स में अगर डेवलपमेंट लोगों का अगर विकास होता है तो उसमें फिर डेवलपमेंट इज आवर टॉप प्रायोरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, तवांग में एंट्री जो नेशनल हाईवे का जो एंट्री है डबल लेन रोड वो तो है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जितने भी जो मल्टी लेटरल रोड्स है तवांग को कनेक्ट करने के लिए करीबन 8-9 रोड होगा। मेन रोड से तवांग को आप डायरेक्टली अलग अलग दिशा से जाने के लिए, तो जितने भी जो बाईपास रोड जो बनाया है उसमें अभी काफ़ी डेवलपमेंट आ गया है। तवांग इज़ नोन एज डेस्टिनेशन, गुड डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। तो जहाँ जहाँ से वो रोड गया है वहाँ पे लोग होटल्स बना रहा है, होम स्टेज बना रहा है, ताकि अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएगा। तो ये जो रोड जो अभी जो मेंशन किया है, रोड फ्रॉम सुना कैम्प टू वीकेवी लोंगडिंग वाया तिजान WRC फील्ड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें मेन मकसद तो वही है कि शायद उस टाइम पर जो जनता था उन लोग ने रिक्वेस्ट किया होगा कि एक एडिशनल रोड मिल जाने से उन लोगों का खेती बाड़ी में उन लोगों का एक्सपांशन प्रोग्राम आने वाला दिनों में खेती वो लोग कर पाएंगे। और दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो इन्होंने रखा है कि जो KVK वहाँ पे जो है उसका कनेक्टिविटी के लिए सरकार क्या करेंगे, तो इसको आने वाला दिनों में मैं वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को लिखूँगा कि इसको कनेक्टिविटी देने का प्लान क्या है और डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड में इसका कितना प्रायोरिटी में है, अकॉर्डिंगली वी विल टेक अप द मैटर। थैंक यू। Next, we'll move to start question number 15. Sri Wangling Lawangdong. Speaker, sir. Before I proceed to my start question number 15, I would also like to request you, sir, that whenever a name of an MLA, a representative is given, it should be mentioned correctly. Herein, I would like to state that the name to my start question is incorrect. It may be kindly corrected. My start question, supplementary to the start question number 15, which the Honorable Minister has replied to, is not satisfactory. This question I have often asked, even in the last government, and the reply given was that the Khunsa Women Police Station would be taken up on priority. On September 17th, 2014, a forwarding had gone to the PHQ for the establishment of a women police station at Khunsa. And a preliminary estimate of 3,51,16,000 was also made. Almost 10 years has gone by, and the women police station is yet to come up. 14,674 square meters had also been earmarked long back. Now, why I would emphasize on a women police station in our state, in Khunsa, is because there are many cases, women-related cases, that are coming up recently and before also. To be precise, 27 number of
cases, women-related cases have been registered. And there are many unregistered cases too. One of the drawbacks of not having a women police station is also that recently you must have heard of incident in Changlang when there was a custodial death of a woman prisoner just a few days back. So these are incidences which are very tragic, and we have to be concerned, deeply concerned. And the woman cannot be kept locked up in the general police station. A separate station is very much essential and required. So why is it taking such a long time? 10 years to be precise. And especially in the TCL belt, there are now many women-related cases because of the narcotic substance. Women are also carriers of that. It's sad to say, but that's a practical aspect of it. So we have to deal it in a very different type of way. So I feel that the government should give a precise answer, not giving only an assurances that I assure, we assure. So I want a precise and to be pinpoint accurate reply to my question as when will it be established? Why is the infrastructure not yet been set up? And regarding to the manpower is for the government to create. There are many, lady police constables who can be also earmarked for the police station there. So I would like a precise answer from the Honorable Minister. Thank you, sir. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir. Sir, question number 15, asked by Honorable Member Warning Longding ji. ये women police station, it was notified for 2018, and through you, I want to explain the House and honorable member also. कि 2004 जून 2018 में इट्स नॉट 10 years, अभी 7 years चल रहा है. इसमें 21 वोमेन पुलिस स्टेशन पूरे अरुणाचल प्रदेश में नोटिफाई हुआ. एंड ये पहले बार अपने टीम अरुणाचल की सरकार मुख्यमंत्री जी के पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जब सरकार बनने के बाद ये पहले बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये वोमेन पुलिस स्टेशन नोटिफाई किया गया है, ताकि पूरे प्रदेश का हमारा वोमेन लोग का जो समस्या को वोमेन ही उसको हैंडल, कोई भी केस हो. उन्होंने सही सजेशन और सही सवाल किया, जिसमें से 2018 के बाद आप सब पता है, हम सब मालूम है कि पूरे विश्व भर में और पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में 2 साल तो हम लोग पूरा कोरोना को लड़ते आए. 2 साल में तो कुछ काम हुआ नहीं है. फिर भी आउट ऑफ 21 वोमेन पुलिस स्टेशन से अभी फेच मैनर में 7 वोमेन पुलिस स्टेशन अभी फंक्शनल में है, क्योंकि उसके लिए उसका क्रिएशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेस मैनर पे वानगो में पूरे एक साथ पूरा प्रदेश में, हाँ वानगो में ये जिस हिसाब से जो रिक्रूटमेंट है, जहाँ नीड बेस पे जहाँ जरूरी है, उसी हिसाब पे सरकार जो है फेस मैनर पे ये काम कर रही है. और जिसमें से अभी तक फंक्शनल जो हो रहा है, जो फंक्शनल है, जैसे कि ईटानगर, तवांग, तेजू, सेप्पा, जीरो, आलो, आउट ऑफ 21 में से जो अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ, दापोरिजो, पांगिंग, यंगकोंग, रोइंग, अनिनी, नामसाई, अंजो, कोलोरिंग, जामिन, जयरामपुर, कोनसा, बोमदिला, यूपिया, ये 14 अभी तो फंक्शनल
अभी उसको फंक्शनल करने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो हमारा मैन पावर के लिए, वो पूरा सरकार डिपार्टमेंट उसके लिए पूरा डिस्कशन और पूरा इसका प्रोसेस चल रहा है। और मैं स्पीकर सर थ्रू यू मैं ऑनरेबल मेंबर को मैं बताना चाहता हूं कि एश्योरेंस भी देना चाहता हूं कि जो नोटिफाइड पुलिस स्टेशन है, वुमेन पुलिस स्टेशन, ये जल्दी से जल्दी सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से ये जितना हो सके इसको प्रायोरिटी में हम लोग लेकर इसको फंक्शन करेंगे। थैंक यू। Next, start question number 18, Sri Hamyong Tangha. Thank you very much for giving me this a privilege to speak, Honorable Speaker, sir. So my question is, why no state transport bus is available till date at my constituency, that is 50 Channel Assembly constituency, and which is one of the oldest ES headquarters in the state? And sir, my second question is, how many state transport buses or stations are available in Changlang headquarters till date? Sir, it is known to all that my constituency is also one of the oldest assembly segments. But it is so sad parts to share herewith that my people is being deprived of these very much essential transport services, that is bus services, over the many years. So I don't have any idea that whether the previous leaders, they tried for it or not, that is not in my knowledge. However, I have dreamed that my people should not be deprived of at least these essential services. So, if it is provided, sir, it will give a big relief to the people of my constituency, and that bus will be covering the distances, that is right from Jirampur via Changlang to Humyong. And for that, I will approach the Honorable MLA Lasim Simaji that terminals, there will be two terminals. One at Jirampur, either at Jirampur Nor, Manmo, and another at Humyong. And this is one of the long awaiting dream of my people, and it would be done as possible as early at the earliest. So I have many outskirts, many remotest villages in my constituency, and the distance covering from Changlang to the remotest villages, those are there, that it is about 60-70 kilometers. And the downtrodden people, they cannot afford hiring the private vehicles for their essential activities or for their emergency ups and downs to and fro. This is the problems which is being faced by the people of my constituency, and that is unbecoming, quite unbecoming at this cutting edge that the people should be deprived of at least these essential services. So, in this regard, I have a question here. I would like to request the Honorable Minister of Transport that, sir, what appropriate measures would be initiated at the earliest to redress that particular grievances being faced by the people of my constituency, sir? That is my question, sir. Thank you so much. Honorable Minister.
Honorable Speaker, sir. Start question 18 asked by Honorable Member the Khamzong Tangham. In this, I want to put light. As all of you know that Arunachal government has a transport department, which the government open up to meet up this one requirement of the people of the Phar Plang area. So in this context, I would like to say that the question asked by the Honorable Speaker, Honorable Member, that why not transport service available till that in Kamyong, which is one of the oldest SC headquarters in the state. So in this matter, I would like to let you know, through you, sir, that despite a very bad condition, Changlang-Kamyong Road, this government is providing bus services there since 2022. So that's too on the alternate day. That is Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. So I don't think that they deprive to the public of that very particular area there. We are, sir, as per knowledge of this House, I would read out that a distance between Changlang-Kimyong Road is just 40 kilometers. But the condition is road condition is very bad. But then we run bus there. From Changlang, it started 7 o'clock in the morning and in the evening, and the afternoon from Kimyong to Changlang and back in the same day. And that way we are flying buses there. And when you talk about other these bus stops in other parts of the Changlang district, I'll say that we'll discuss with my department first, and then to the Honorable Chief Minister and Honorable Prime Minister, and let you know there, Director. And regarding his second question is how many state transport buses are available in Changlang headquarters. So in this, at present, there are 6 numbers of buses available in Changlang, maintaining services. That is, number 1, Changlang to Itanagar, 1 alternate services, Changlang to Tinsukia, 1 daily, Changlang to Margarita, 1 daily, Changlang to Kamyong, as I told you earlier, 4 days in a week. Changlang to Yadam via Margarita, 1 day, 1 daily. Changlang to Margarita, Tinsukia, on time basis. So my department, transport department, is committed for the service of the public. So I would like to ensure, Honorable Member, that in coming days, we discuss with the department whatever possible will be made available to your public. So just thank you very much. Thank you. Excuse me, sir. As you had replied that the transport service, bus services has already been given. But, sir, I belong to that very much constituency that at least physically I am very much available there. So it is right that it was around 2014, 2015, there was one bus having white color, and that was, and there on the back of that bus, there was clearly written as it was funded from the MLA. And after some days, it went missing. So in these present days, that whatever I have witnessed physically, that in fact the department has provided
but physically we don't see that, sir. And that is the complaints of my public. It is not my individual, sir, concern, this one, complaints are, that's why, sir, whatever you had replied that 95% I'm satisfied, but 5% that is, I leave upon you to decide that, sir, as early as possible, that grievances will be made up, sir. Thank you, sir. Any reply? Honorable Minister. My department will work on it and get back to him. Thank you. We'll move to next. Start question number 37, Kumar Wai. स्पीकर सर, मैं हाइड्रो पावर मिनिस्टर इंचार्ज से ये जानना चाहता है, क्योंकि मेरा आई विटनेस है, मैंने खुद देखा है 2004 से लेके 2005 से, जब अपंग साहब से लेके अभी 6 मिनिस्टर हो गया, तो वहाँ से कंटिन्यूस एमओयू कंपनी इतना एमओयू किया है, और ऐसे ऐसे कंपनी हैं दिल्ली में बैठ के, मैंने खुद आई विटनेस है, सिनेमा हॉल में जैसे टिकट काटता है वैसे वहाँ अरुणाचल भवन में इतना कंपनी लोग आता है और नदी को दिखाने, लोकेशन दिखाने, इतना मेगावाट का अंधा धुंधा करके पूरा एमओयू किया है। तो मैं इसलिए मिनिस्टर इंचार्ज से ये जानना चाहता है, वहाँ 2004-05 से लेके अभी तक कितना एमओयू हो, और एमओयू हुआ है तो जो नेग्लिजेंसी कंपनी को कितना अगर अभी तक टर्मिनेट हुआ है, तो टर्मिनेट हुआ है तो उसका अपफ्रंट मनी को स्टेट गवर्नमेंट रिफंड वापस देना है कि नहीं देना है, और उस टर्मिनेट जगह प्रोजेक्ट को कोई अगर इंटरेस्टेड कंपनी जो है अगर चाहेगा तो उसको री अलॉटमेंट, री एमओयू कर सकता है कि नहीं कर सकता। अभी देखो, जब से एमओयू किया है 20 साल हो गया, तो 20 साल में चाइना कितना लाखों मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाया होगा। जहाँ तक हम जानता है, यहाँ में अरुणाचल में जो काम कर रहा है, एनएचपीसी काम कर रहा है, निप्को काम कर रहा है, प्राइवेट कंपनी का तो अभी तक हम लोग दिखाई नहीं देता है। क्यों, हम सब का एक उम्मीद है, हमारा यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को अगर ये प्रोजेक्ट हम लोग स्मूथली करता है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी तो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये मिनिस्टर इंचार्ज से जानना चाहता है कि इसमें अगर टर्मिनेट किया है तो उसमें लीगल प्रॉब्लम है क्या नहीं। अगर अरुणाचल ऐसे जगह है कि बहुत सा जगह जो है प्रो डैम वाला भी है, यहाँ सिर्फ चाचा चलता है जहाँ एंटी डैम है, तो हमारा जगह में लोगों ने पूरा वेलकम कर रहा है। हमारा कम से कम वहाँ में भी छोटा छोटा मेगावाट है, 50 मेगावाट का है, 60 मेगावाट का है, तो उसको सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू। Honorable Minister. स्पीकर सर, शायद मेंबर जी को जिन्होंने सवाल उठाया है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो मैं आपको बता जानकारी के लिए मैं विस्तार से बता देना चाहूँगा। जी हाँ, यह सही है कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल इंडिया में ना है, उसका 40% पोटेंशियल सिर्फ अरुणाचल प्रदेश। हमारा पोटेंशियल अभी हाइड्रो पावर पोटेंशियल 58,000 मेगावाट का है अरुणाचल अकेला में। अगर अरुणाचल का इतिहास, हाइड्रो पावर का इतिहास हम देखा जाए तो शुरुआत में हमारा सिर्फ 400 मेगावाट था, हमारा 405 मेगावाट, जो रंगा नदी अभी पानियर जो प्रोजेक्ट बोलता है, सिर्फ वही था। अभी आज का समय में 1200 मेगावाट से ज़्यादा हाइड्रो पावर
जो कैपेसिटी का टोल कैपेसिटी हमारा पास है अभी आज तक। आपने सही कहा है कि 2004 से लेके बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हमने एमओयू साइन किया रहा, और उस प्रोजेक्ट्स में से ज़्यादा प्राइवेट डेवलपर्स था। वो किस लिए नहीं हो पाया? 2004-05 में से लेके 2014-15 तक 8-9 तक जितना भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमने साइन किया है वो कर नहीं पाया, वो फेल हुआ। उसका कारण से अरुणाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ। तकरीबन 46,000 मेगावाट का हम एमओयू, और आपने पूछा है कि एमओयू कितना साइन किया, उसका जवाब चाहिए। फिर कितना टर्मिनेट किया, उनका भी जवाब चाहिए। उनका जवाब तो दे चुका है आपको रिप्लाईज में। तो मेरा यही कहना है कि वो जो नहीं कर पाया, तो पेमा खांडू सरकार जब आया शासन में, तब हमने जब चर्चा करके देखा कि हमारा इतना पिछले 15 साल में इतना एमओयू साइन किया 46,000 मेगावाट का, जब नहीं हो पाया, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमें कुछ करना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम भारत सरकार से बातचीत किया, आलोचना किया, और हम दोनों मिलके 29 प्रोजेक्ट जो टर्मिनेटेड प्रोजेक्ट्स है, हमने ये निर्णय लिया अरुणाचल सरकार ने कि जो हमारा टर्मिनेटेड प्रोजेक्ट होगा और वुड बी टर्मिनेटेड प्रोजेक्ट होगा, उसको हम सीपीएससी उसके, क्योंकि प्राइवेट डेवलपर्स फेल हो गया, इसलिए हमको सीपीएससी उसको देना है। ये निर्णय लेने के बाद भारत सरकार से बात करके हम पहला चरण में हम 29 प्रोजेक्ट्स टारगेटेड लिया, 29 प्रोजेक्ट्स। और 29 प्रोजेक्ट्स को हम भारत सरकार को बोले कि इसको अभी सीपीएससी को देने के लिए आप लोग हमको इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने 13 प्रोजेक्ट्स का इजाज़त दिया। 29 प्रोजेक्ट्स में से 13 प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी एमओयू साइन कर लिया है। 12.5 गीगावाट है, यानी कि 12,500 ये जो मेगावाट का प्रोजेक्ट हमने एमओयू साइन किया है सीपीएस। उस सीपीएस उसमें है एनएचपीसी है, टीएचडीसी टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एसजेबीएन है, सतलज जल विद्युत निगम है, और निपको। ये 4 कंपनी का साथ हम एमओयू साइन किया 12.5 गीगावाट का हम लोग 13 प्रोजेक्ट्स। अगर 13 प्रोजेक्ट्स के लिए अभी हमें क्या चाहिए? 13 प्रोजेक्ट्स किसी में है, कहीं में बंद नहीं है, या डीपीआर बना भी है तो उनको अपडेट करना है, या फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना होगा, फिर नया से लेना होगा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना होगा, लैंड कॉम्पेंसेशन करना होगा। उसमें से 4 जो प्रोजेक्ट है प्रोग्रेसिव स्टेट में है, डीपीआर बन गया है, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गया। वो 4 प्रोजेक्ट हम इमीडिएटली हम शुरू करेंगे, उनका फाउंडेशन पे करेंगे। तो ये जो 13 प्रोजेक्ट जो हो जाएगा, 13 प्रोजेक्ट होने से हमारा 13 प्रोजेक्ट करने के लिए 1,20,000 से 1,30,40 हजार करोड़ हमको चाहिए। और ये जब व्यय करके, ये इन्वेस्ट करके जो आय होगा, 12% जो हमारा फ्री पावर मिलेगा, और 1% जो हमारा लोकल एरिया डेवलपमेंट का जो मिलेगा, उसमें से हमको 3,000 करोड़ का सालाना मिलेगा, हमको इनकम होगा, रेवेन्यू आएगा 3,000 करोड़ का। और हम उसमें 26% हमारा जो इक्विटी शेयर है, भारत सरकार ने हमारे लिए इक्विटी शेयर भी मंजूरी दिया है। पूरा भारतवर्ष में जितना इक्विटी शेयर, उसमें से 4,000 करोड़ हमारे लिए, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए।
अगर वो इक्विटी शेयर को लगाएगा सालाना हमारा 10,000 करोड़ आएगा। अगर ये प्रोजेक्ट जो 13 प्रोजेक्ट 10-15 साल में कंप्लीट हो जाएगा, हमारा अरुणाचल प्रदेश का रेवेन्यू सालाना 10,000 करोड़ आएगा इक्विटी शेयर का साथ। 10,000 करोड़ सबसे ज्यादा अगर ये जो पर कैपिटा इनकम स्टेट होगा तो हमारा स्टेट, तो उसी में हम लगा हुआ है। उसके अलावा अभी जो चल रहा है, जो लोअर सुबनसिरी जो प्रोजेक्ट है 2000 मेगावाट, वो अभी 25 में 500 मेगावाट है, वो पूरा हो जाएगा 25 में। और जो 2000 जो प्रोजेक्ट है फुल्ली जो पूरा 2000 का प्रोजेक्ट है, ये 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो दिबांग वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है 2800, उसका भी काम चल रहा है, बहुत जोर से काम चल रहा है। अगर उसका काम अभी तक हमारा 12.22% फिजिकल प्रोग्रेस हो चुका है अभी तक हमारा 2024 तक, तो इस प्रकार का हमारा प्रोग्रेस चल रहा। और एक खुशी का बात है कि जो लोअर डिम्बे 1750 मेगावाट बहुत सालों से वो डिफॉल्ट हो गया वो पार्टी, उसका कारण से एनसीएलटी में चला गया है। अभी एनसीएलटी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और एनसीएलटी ने भारत सरकार को बोला है कि अभी आप टेंडर कर सकते हैं। अभी टेंडरिंग प्रोसेस में है, अगर वो हो जाएगा तो वो उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो चुका है, लैंड कंपेंसेशन भी कितना साल पहले से हो चुका है। टेंडर होते ही काम चलने से वो 4 साल में कंप्लीट होगा, मैक्सिमम 5 साल लेता हूँ मैं, 5 साल में कंप्लीट हो। तो इस तरह का सीनियर अभी प्रेजेंट सरकार इस तरह का बहुत जोरदार हम लोग काम कर रहा है। तो इसीलिए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का जो प्रोग्रेस अभी अच्छा चल रहा है। उसके अलावा अब जो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स का है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी हम काम लिया है। जो बॉर्डर एरिया में जहाँ हमारा आर्मी रहता है, आर्मी पोस्ट है, जहाँ पैरामिलिट्री पोस्ट है, इस गांव में बॉर्डर एरिया में बिजली नहीं होता है, उनके लिए भी 50 प्रोजेक्ट्स हम RITF में लिया है। 17 प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज में लिया है, उसमें से 9 प्रोजेक्ट्स 2023 में अमित शाह जी ने उद्घाटन किया है किबिथू से। सेकेंड फेज में हम 9 प्रोजेक्ट लिया है। 9 प्रोजेक्ट्स में से 3 प्रोजेक्ट्स का काम अभी चल रहा है, हो गया है, अभी बाकी 6 प्रोजेक्ट भी हो। लास्ट फेज में हम लोग 6 प्रोजेक्ट लिया है। इस तरह का हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में भी ले रहा है, और बड़ा प्रोजेक्ट्स तो है ही है। और जो बिग डैम का बारे में, बिग डैम बोल रहा है कि बिग डैम बारे में, बिग डैम का बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो हम आने वाले जो बजट सेशन होगा, हम बिग डैम का बारे में भी सदन को मैं बताने वाला हूँ। तो अभी का फिलहाल इस तरह का है, 13 प्रोजेक्ट हमने एमओ किया है, टर्मिनेट कर दिया 100 तकरीबन 154 नंबर हम डेवलपर्स का साथ हमने एमओयू साइन किया है, उसको टर्मिनेट कर दिया है। कितना टर्मिनेट किया सच आपको वहाँ में जरूर वहाँ में रिप्लाई चला गया है आपको, टर्मिनेशन कितना हुआ ये आपका, ये 169 और मैं साइन किया है। उसका बाद 53 एमओ टर्मिनेटेड किया गया है। 15 अलॉटेड प्रोजेक्ट हैव बीन ड्रॉप्ड स्टडी के लिए। तो इस तरह का पूरा आपको रिप्लाई दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन, आपको खुशी होना चाहिए अभी का जो प्रोजेक्ट Already question hour is over. Since we have not received any short notice in item number 2, we will proceed to item number 3 of the list of the BNS. Item number 3, arbitrary reference. Arbitrary reference to late Talo Mukdi, the former minister.
Honorable members, you may be aware that former Minister Sri Talo Mugli breathed his last on 18th July 2024 at his private residence at Raga, Kamle district after a prolonged illness. He was born to the late Tage Mugli on 5th October 1958 at Muri Mugli village of Upper Subansiri district. He is survived of 2 wives, 9 children and 17 grandchildren. He did his matriculation from the government higher secondary school, the Porijo. He dedicated his entire life for serving the people of the state. During his illustrious political career, he served in different capacities. His political journey started as Gram Panchayat member, Mugli village in 1978 to 1981. Then he went on to become Anchal Samiti member, Mugli village for 3 years from 1982. He was also appointed as District General Secretary of People's Party of Arunachal Pradesh, Upper Subansiri district from 1981 to 1984. District Congress Committee I, Vice President, Upper Subansiri district in 1984. Then appointed as Chairman of the Arunachal Pradesh Congress I, Sevadal during 1992 to 1995. President of the Arunachal Badminton Association for 3 years, that is 1995 to 1997. Vice President APCCI in 1996 to 97 and President APCCI from June 1997 May to 1999. He was nominated as member of Legislative Assembly in 1985. Subsequently, he was re-elected as member of Legislative Assembly in 1990 and 1995. He was then inducted as Deputy Minister of Power during 1990-91 and Deputy Minister with independent charge of Horticulture Department during 1991-95, Minister Irrigation and Flood Control from March 1995 to August 1996, Minister Power from May 1999 to October 1999, and Minister RD and Panchayati Raj from 14th October 1999 and Minister PWD in 2002. Besides, he was also a recipient of prestigious International Gold Star Award by International Forum for Non-Resident Indian, presented at London on 26/6/1999. Nisi Elite Society NES Statesmanship Award in 1999. Members, National Advisory Council on SC/ST AICCI, New Delhi. With his demise, our state has lost a great and visionary leader. I express profound grief and sorrow on untimely demise of late Talo Mugliji. I pray Almighty God to give comfort and strength to the brave family members to bear the irreparable losses. Now, members who would like to make obituary reference may do so. Yes, Panitaran ji. Honorable Speaker, sir, मैं इस arbitrary reference तो लेट तालु मोगली जी मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। आज ये दुख की घड़ी है, हमारे बीच हमारा राज्य का एक केयर टेकर, सीनियर सिटीजन, सीनियर मेंबर्स, फॉर्मर मिनिस्टर हम सब के साथ में नहीं रहा। It's an irreparable loss to the state in general and particular to the Nisi community. वैसे इसका पॉलिटिकल जर्नी आप लोगों ने सुना। हमने जब सोसाइटी के लिए हम लोग जब काम करते हैं, एक साथ में काफ़ी समय हम लोग काम किया। अपना एक्सपीरियंस को मैं कुछ बताना चाहूँगा। वैसे उनका जो पॉलिटिकल जो करियर जो है, जैसे स्पीकर सर ने बताया, in 1978
से 85 तक पंचायत लेवल में रहा। अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है पंचायत से शुरू किया, ग्राम पंचायत मेंबर फ्रॉम 1978 to 81 and then from 1982 to 85 as अंचल समिति मेंबर्स। then उसके बाद उनका जो पब्लिक के ऊपर जो काम किया हुआ को जो डेडिकेशन, जो डिवोटेड जो काम किया, उसको सरकार में रिकॉग्नाइज किया। हमारी पब्लिक जो रागा की कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो रिकॉग्नाइज किया और स्टेट में उसको एज एन मेंबर ऑफ असेंबली उसको नॉमिनेटेड किया गया है 1985 को। उनका जो पॉलिटिकल करियर में अपना जो राज के लिए जो काम किया है, हमने देखा है कि वो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काफ़ी काम किया। सबसे पहले तो डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर पावर, देन डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर हॉर्टिकल्चर इन इंडिपेंडेंट चार्जेस में किया, एंड देन मिनिस्टर फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, देन पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्टर फॉर पावर, एंड देन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर में काम किया। जब वो अपना जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया जाता था वो खूब बहुत अच्छा से निभाया करता था और स्टेट को बहुत अच्छी तरह से लीड किया। साथ ही साथ में जितने भी उनके साथ जो भी आते थे, उनका जो वेलकम नेचर, उनका जो बिहेवियर, इनका एटीट्यूड वो काबिल तारीफ थे। उनका बोलने का जो तरीका और बहुत अप्रिशिएबल था। जब भी हम उनके पास जाते थे, अपना भाई बोल के बहुत प्यार से हम लोगों को हर चीज़ को, चाहे वो सोसाइटी के बेस में हो या फिर स्टेट के वेलफेयर में हो या लोगों के वेलफेयर के लिए हो, वो हमेशा हम लोगों को समझाता था। तो इस तरह हमारा मुगली सर जो है बहुत अच्छा सेवा किया, सोसाइटी को सेवा किया, स्टेट को सेवा किया। उनका जो नेशन को सेवा किया, तो सेवा को रिकॉग्नाइज करके जो इंटरनेशनल फोरम है, तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस को जो अवार्ड दिया जाता है, इन्होंने 1999 को तो लंदन में जाके उसको रिकॉग्नाइज किया और रिसीव किया। तो वैसे ही एक ये बहुत हम सब के लिए अच्छी बात है और सुन के भी कि हमारा मुगली सर को बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का भी अवार्ड दिया गया है 1997 को। ये उनका जो काम, जो देश के लिए, जो राज्य के लिए, समाज के लिए जो काम किया, उनको रिकॉग्नाइज करके ये जो अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड जो उसको दिया गया। और जहाँ तक पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में अगर हम कहें, तो आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट इन नीसी विलेज सोसाइटी। तो हमने काफ़ी साथ में टूर भी किया। हम यहाँ से दापोरिजी टूर भी गए, याजाली टूर भी साथ में गया, देन सेपा टूर भी साथ में गया। जो मेरा एक्सपीरियंस है और सोसाइटी को बहुत अच्छा से गाइड करता था। जो भी जब बात करते थे सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा गाइड करता था। तो उनका जो करियर में तो सोसाइटी पहले से जब करके आ रहा है, तो उस सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन को देखकर हमारा जो नीसी एलिट सोसाइटी से भी उनको अवार्ड दिया गया है, जो कि उनका जो 100% कमिटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उनको देख के ये अवार्ड दिया गया। तो इस तरह आज कुछ
दिन पहले हमको ये सुनने को मिला कि हमारा मुगली जी जो है गुजर गए, तो सही में ये हम लोग के लिए इररिपेरेबल लॉस है। आज हम अपने एक केयर टेकर, स्टेट का केयर टेकर, स्टेट का गाइड, हम सब का गाइड को खोना पड़ गया। तो इस दुख की घड़ी में मेरा अपना कंडोलेंस और अपने लोगों की ओर से कंडोलेंस मैं परिवार को देता हूं, और इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ में हैं। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर, थैंक यू।